Hello viewers, welcome to my YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So today we will discuss determination of income and employment. That is very important chapter. Yeah, you can say unit for second term exam CBSE board. So guys, today we will discuss aggregate demand and aggregate supply. Okay, let's start. What is determination of income? Here two terms is given, determination of income and employment we will discuss later. First we see what is determination. Determination define equilibrium level, okay, and income define national income. National income, some total factor of income which is earned by normal resident of a country during an accounting year, and equilibrium level defined by aggregate demand and aggregate supply. But here equilibrium level of national income is determined by aggregate demand and aggregate supply. So determination define equilibrium level and income define national income. So we see what is aggregate demand. Aggregate demand represents the total expenditure. Total expenditure in what way? In household expenditure, investment expenditure, government expenditure and net export. So it's represent total expenditure on final goods and services in an economy during a period of time. So whole money is spent, yeah, total demand in an economy, that's called aggregate demand. Here we see some components. Here two component divided of aggregate demand. First, open economy. Open economy which means free trade. There is no restriction. And second one is closed economy component. Here some restriction to get free trade. ओपन इकोनॉमी कंपोनेंट में फोर कंपोनेंट्स होते हैं. एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच रिप्रेजेंट हाउसहोल्ड, and household expenditure depends on disposal income. And next, investment expenditure which means producer to produce goods and services, to purchase new capital assets in way plant and machinery, building equipment. Okay, so it's basically depend on rate of interest. If rate of interest low, definitely producer invest more and produce more goods and services and to buy fixed capital assets. Okay, next, government expenditure. Government spend money to for social welfare, for health, education, defense, and next, net export. Export minus import. In closed economy, here mention consumption plus investment. Consumption which represent household sector, investment which represent producer sector, firm. Okay, so here closed economy represent two sector model in circular flow. We see aggregate demand schedule. Aggregate demand schedule which means consumption plus investment in form two sector model. First we see level of income. Here mentioned level of income, consumption expenditure, investment expenditure and aggregate demand which means consumption plus investment. So we just try to understand this schedule. Aggregate demand which means level of income 1 0, so consumption expenditure 100. It's defined कि level of income कुछ भी हो but consumption expenditure कभी भी जीरो नहीं होता और कभी भी नेगेटिव नहीं होता. हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हुए थे, जिनकी जॉब छूटी थी, जिनका काम बंद हुआ था, बट उनका कंजम्पशन बंद नहीं हुआ था. हाँ, ये हो सकता है कि कंजम्पशन उतने अमाउंट से इंक्रीज भी नहीं था या मैक्सिमम लेवल पे भी नहीं था, मिनिमम हुआ था, लोगों ने कंजम्पशन करना कम किया था लेकिन बंद नहीं किया था, नेगेटिव नहीं हुआ था. ओके, अपनी पास सेविंग से अपना कुछ भी लोन लायबिलिटी लेके कैसे भी उन्होंने गुजारा किया बट किया. सो लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट्स नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ दे रखा है कांस्टेंट 100. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू किन्स इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने बताया था ड्यूरिंग एग्रीगेट डिमांड when we see schedule, so investment expenditure remains constant
ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने कांस्टेंट यानी कि रिमेन कांस्टेंट बताया था। किसने बताया था? किन्स ने बताया था। एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, तब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा था तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, बट नॉट दी सेम प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर जो रेड में दे रखा है, रेड मार्क में, वो बताता है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है लेवल ऑफ इनकम से। ओके, ये क्या बताता है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है लेवल ऑफ इनकम से। जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है लेवल ऑफ इनकम से, विच रिप्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज विद लेवल ऑफ इनकम बट नॉट दी सेम प्रोपोर्शन। लेवल ऑफ इनकम से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बट नॉट दी सेम प्रोपोर्शन। ओके, ये जो ब्लैक पॉइंट है ये क्या बताता है? हमारा इक्विलिब्रियम बताता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ इनकम क्या है? इक्वल है, यानी कि 400 और 400 लेवल ऑफ इनकम जितनी है उतना क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है? टोटल डिमांड ऑफ दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो लेवल ऑफ इनकम है, सपोज दैट किसी कस्टमर की लेवल ऑफ इनकम जो है वो 25,000 पर मंथ है, और वो उतना ही क्या करता है? डिमांड करता है। 25,000 का वो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का क्या करता है? डिमांड करता है। सो लेवल ऑफ इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड विच रिप्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट आता है जो ये वाला पॉइंट जो ब्लू में दे रखा है, ये बताता है एग्रीगेट डिमांड लेस देन है लेवल ऑफ इनकम से। Okay, so I hope this point will be clear to all of you. Here we see schedule. According to Keynes, investment remain constant and it's represent horizontal line. Horizontal line which means indicate autonomous investment. Autonomous investment which represent independent investment. Okay, slope of aggregate demand, it's positive slope. जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट्स रिप्रेजेंट अपवार्ड स्लोप। सो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी मूव एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड represent customer side, okay, consumer side, and aggregate supply represent producer sides. So aggregate supply which means total output of final goods and services produced in an economy. It refers to the total value of final goods and services which have to plan to be produced by all producing units in the economy. So aggregate supply equals to consumption plus saving. कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग किसके लिए? फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। एग्रीगेट सप्लाई जो रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर दी सेम थिंग। सो वी सी एग्रीगेट शेड्यूल। हियर एग्रीगेट सप्लाई गिवन हियर, दैट इज इनकम, एंड हियर कंजम्पशन, सेविंग एंड रिमार्क्स हमें समझना है। फर्स्ट थिंग हम ये समझेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि लेवल ऑफ इनकम जीरो हो बट कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, बट नॉट एट दी सेम प्रोपोर्शन। व्हेन लेवल ऑफ इनकम जीरो था, कंजम्पशन 100 था, तो सेविंग डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। और ये जो कंजम्पशन है जहां पे लेवल ऑफ इनकम जीरो है बट फिर भी कंज्यूम हो रही है गुड्स, ये बताता है मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन इट्स डिनोट बाय सी बार। ओके, एंड सेविंग मतलब नेगेटिव है सेविंग, तो ये बताता है सी ग्रेटर देन वाई, यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है लेवल ऑफ इनकम से, इट्स रिप्रेजेंट नेगेटिव। एंड हेयर सी इक्वल्स टू वाई, इट्स रिप्रेजेंट जीरो, एंड हेयर सी लेस देन वाई, इट्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव। मतलब जहां लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज तो हुई है बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है बट नॉट एट द सेम प्रोपोर्शन। हम कुछ अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड कुछ अमाउंट सेव कर रहे हैं, सो इट्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव थिंग्स फॉर फ्यूचर पर्पस, एंड इट्स रिप्रेजेंट जीरो एंड इट्स रिप्रेजेंट नेगेटिव। सो थ्री कंडीशन यहाँ पे हमने देखी। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? इक्वल है, जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना कंज्यूम भी किया।
ओके, तो ये पॉइंट हमारा क्या बताता है, इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पर एग्रीगेट शेड्यूल, बट यहाँ पर एग्रीगेट शेड्यूल में कुछ पॉइंट्स भी हैं। फर्स्ट तो मिनिमम कंजम्पशन डिनोट बाय सीवार एंड इट्स रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट इनकम। ओके, saving component, it's changeable because it's depend level of income and consumption। हमारा level of income क्या है, हम कितना income consume कर रहे हो, कितना हम save कर रहे हैं, वो depend करता है हमारी saving से और हमारी consumption से। so second point ये बनता है, but according to Keynes technology remained unchanged in short run। टेक्नोलॉजी अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी तो प्रोड्यूसर, तब कोई भी प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तब वो मार्केट में सप्लाई करेगा, तो टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो उसके लिए डिफिकल्टीज आएगी। ओके, सो टेक्नोलॉजी शॉर्ट पीरियड में रिमेन कांस्टेंट होती हैं, वो चेंजेबल नहीं होती हैं। ओके, अनचेंज्ड होती हैं। नेक्स्ट बताता है एग्रीगेट सप्लाई, इट्स शो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई। व्हाई? बिकॉज जितना प्रोडक्शन होगा, जब जितना प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी, तब लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये 45 एंगल पे बताता है एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके, एंड यहाँ पर जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है यहाँ से, तो वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई लेवल ऑफ इनकम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो गाइज, आई होप दिस points will all will clear things to you। so guys, to like, subscribe and share my channel, and आगे मैं इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लियर करूंगी, जो सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, तब तक कीप वॉचिंग and share more and more। Thank you so much।